A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed the two important adjustment at the time of the issue of the share, which are related to the volume 2 company's account. That is calls in arrear and calls in advance. Firstly, we see that what is the meaning of calls in arrear and what journal entry should be passed at the time of the calls in arrear when we issued any share. And you know very well there are two ways by which we record the calls in arrear account, calls in arrear at the time of the issue of share. The first will be when calls in arrear account is open, and number second when calls in arrear account is not open. The number second is calls in advance. You know very well it is a very important situation where shareholder paid the allotment money or calls money in advance. It means कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ, कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ, या फिर अलॉटमेंट और कॉल्स का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ पे कर देता है, तो दिस इज नोन एज एन कॉस्ट एडवांस. So in this situation, you know very well there are basically two ways. The first one will we open a calls in advance account in the books of the company, and number second when we could not open the calls in advance account in the books of the company. So after completing the two important topics related to the issue of share, that is in calls in arrear and calls in advance, let's we solve the practical portion which are mixture of the calls in arrear and calls in advance. यानी आज के इस सेशन में सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस इस एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में गिवन होगा. यानी कि एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें कुछ शेयर होल्डर अपना शेयर की अमाउंट एडवांस में पे करेंगे और कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो अपने शेयर की वैल्यू पे नहीं करेंगे. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस. सो लेट्स वी सी द क्वेश्चन. And this question is related to your book, the question number 19. The question number 19 says that on 28 February 2016, the first call of ₹2 per share become due on 50,000 share allotted by Kumar Limited. Komal, holder of 1,000 share, did not pay the first call money. It means 28 February 2016 को 50,000 शेयर पे ₹2 कॉल किया गया फॉर द फर्स्ट कॉल. कोमल अ होल्डर ऑफ 1,000 शेयर, कोमल जिसके पास 1,000 शेयर है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. कोविल अ होल्डर ऑफ 750 शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर अलोंग विद फर्स्ट कॉल. वहीं दूसरा शेयर होल्डर का नाम है कोविल जिसके पास 750 शेयर्स हैं, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जो कि ₹4 है वो फर्स्ट कॉल के साथ पे करता है. सो यू कैन सी दैट ऑन द फर्स्ट कॉल कंपनी कॉल्ड 50,000 शेयर ऑफ ₹2 ईच, बट कोमल 1,000 शेयर था, उसने पैसा पे नहीं किया, वेयरएज कोविल ने 750 शेयर पे एडवांस का पैसा दे दिया. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the amount received by opening calls in arrear and calls in advance account in the books of the company. यानी आपको एंट्री पास करनी है. So it is a very simple question and this question is already asked in the CBSE examination in the year 2016. So the question number 19. In the question number 19, company called 50,000 शेयर पे कंपनी ने ₹2 कॉल किया फर्स्ट कॉल पर. एट दिस टाइम द टू एक्टिविटीज वेर ऑकर्ड. फर्स्ट कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर किसने किया? कॉल्स इन एरियर किया कोमल ने, जिसके पास कितना शेयर था? 1000 शेयर था.
उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं लिया, सो कॉल्सन एरियर की अमाउंट कितनी हो गई, कॉल्सन एरियर हो गया 1000 इंटू 2। वेयर एज एक शेयर होल्डर था, उसने एडवांस का पैसा दे दिया, सो एडवांस कितना दिया, उसका नाम था कोवेल, जिसके पास कितना शेयर था 750 शेयर था, उसने एडवांस कर दिया, यानी पैसा एडवांस में दे दिया। कितने शेयर पे, 750 शेयर पे उसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया 4 rupees। इट मींस अमाउंट रिसीव्ड एज अ कॉल्स एडवांस बेस बाय 4 rupees इज 3000। सो आपने देखा फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 50,000 शेयर पे 2 rupees से, बट उसी पे एरियर भी है, एडवांस भी है। सो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, किससे रिलेटेड, जर्नल एंट्री पास करनी है हमको। सो जर्नल एंट्री पास होगी जब, तो डेट के साथ होगी, क्योंकि डेट गिवन इन द क्वेश्चन 28 February 2016। So on 28 February 2016 सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सो इंक्रीज शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट होगी, कंपनी कॉल करेगी 50,000 शेयर पे 2 rupees। इट मींस कंपनी कॉल करेगी 1 lakh। ऑन द सेम डे 28 February 2016 कंपनी को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितना मिलना चाहिए था, 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए था, बट उसमें एरियर भी है, सो कॉल्स एरियर तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ द रिसीव द मनी। क्योंकि कोमल ने 1000 शेयर पे 2 rupees यानी फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो एरियर विल बी 2000। वेयर एज कोवेल ने एडवांस किया, क्योंकि हमें एडवांस अकाउंट ओपन करना है, सो कॉल्स एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 3000। सो यू कैन सी दैट हमें फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए, 2000 नहीं मिला क्योंकि कोमल ने पैसा नहीं दिया, और 3000 हमें मिल गया क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसका नाम कोवेल है उसने एडवांस में पैसा दे दिया है 3000। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज 1 lakh plus 3000, 1 lakh 3000 minus 2000 is 1 lakh 1000। सो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज एन 1 lakh 1000। सो प्लीज नोट डाउन the solution of the question number 19 जिसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया, and also find out the amount received on the first call as well as the working note given in this question. So you can see that कभी-कभी एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं which are mixture of the cost and area and cost and advance. So please note down. So after completing the calls in area and calls in advance, let's we move to the very important topic of this chapter, that is an oversubscription. And most of the examination, when in examination paper जब 8 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, so basically it will be related to the very important topic, that is an oversubscription. So please note down what do you mean by oversubscription, and इस सिचुएशन में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहले तो क्या होता है ओवरसब्सक्रिप्शन, और ओवरसब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। Shares are said to be oversubscribed. Shares are said to be
over subscribed when number of shares applied for is more than the number of shares offered to public for subscription. So what is the meaning of oversubscription? It is a very simple meaning of the oversubscription. Shares are said to be oversubscribed when number of shares applied for is more than the number of shares offered to the public for subscription. You know very well there are different categories of the share capital: authorized share capital, subscribed share capital, issued share capital, as well as called up share capital and paid up share capital. So कंपनी क्या करती है? सबसे पहले अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त वो अपने मैक्सिमम शेयर कैपिटल से अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, सो व्हिच इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से वो कुछ शेयर पब्लिक को इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएं। सो इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में रिलेशनशिप ये देखा जाता है, या तो शेयर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाते हैं, या तो अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं, या तो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ओवर सब्सक्राइब मीन्स जब कंपनी, मान लीजिए इफ एनी कंपनी इशू, कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, बट पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, पब्लिक को एज अ होल अप्लाई करना पड़ता है शेयर को परचेस करने के लिए। पब्लिक ने अगर 8,000 शेयर अप्लाई किया तो विच इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना शेयर कंपनी ने इशू किया उससे के कम के लिए शेयर का क्या आता है? सब्सक्रिप्शन आता है, तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर और पब्लिक ने 12,000 शेयर सब्सक्राइब कर दिया, 12,000 शेयर मतलब कंपनी ने डिमांड की 10,000 शेयर मार्केट में इशू हुआ, लेकिन पब्लिक ने डिमांड की 12,000 शेयर खरीदने के लिए, सो इट विल बी नोन एज एन ओवर सब्सक्रिप्शन। सो यू कैन सी दैट what is the meaning of under subscription and over subscription. Under subscription is a situation where number of share applied for is less than the number of share offered to the public for subscription, and in other words the over subscription means where companies subscribed share is more than the issued share, यानी पब्लिक जितने शेयर के लिए सब्सक्राइब करती है वो ज्यादा होता है, बल्कि जो कंपनी का जो एक्चुअल इशूड शेयर होता है वो कम होता है। तो इस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल, कंपनी ने शेयर इशू कितने किया पब्लिक को? 10,000। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 12,000। तो कंपनी 10,000 से ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर टू द पब्लिक एक्सटेंड टू द इशूड शेयर, यानी कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और पब्लिक ने अप्लाई किया 12,000 शेयर का के लिए। इस सिचुएशन में भी कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर ही क्या कर सकती है? सेल कर सकती है, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दे सकती है। यानी जो एक्सेस 2,000 शेयर्स हैं वो कंपनी सेल आउट नहीं कर सकती, चाहे उसके प्राइस शेयर कैपिटल में शेयर रिमेनिंग हो या ना। कंपनी शेयर सिर्फ उतने ही शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है जितना उसने इशू किया, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। So in the over subscription we followed a lots of the adjustment जिसे हम one by one discuss करेंगे। So please note down the note related to the over subscription। Company cannot allot
cannot allot shares more than offered for subscription. Board of directors will have to allot shares on pro rata basis. So it is a very important note related to the over subscription कि कंपनी जितना शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर्ड करती है यानी इशूड करती है उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू अलॉट शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस. इसका मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर होती है या अथॉरिटी होती है कि वो शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर सकते हैं. प्रोराटा मतलब अगर अप्लाइड शेयर्स के लिए आया 10,000 शेयर, अभी एग्जांपल में आपने देखा था 12,000 शेयर्स, उस बेसिस पे वो कितना शेयर अलॉट कर सकती है जितना उसने इशू किया है. तो प्रोराटा मतलब अलॉटेड शेयर को या सब्सक्राइब इशूड शेयर को सब्सक्राइब शेयर के साथ एडजस्ट करना, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितना उसने इशू किया है. तो जितना कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था सिर्फ उतना ही शेयर वो अलॉट कर सकती है अप्लाइड शेयर. और वो कैसे अलॉट करती है, इसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. सो प्लीज नोट डाउन द मेथड्स और वे by which company allot the share. In case of oversubscription, company may allot. In case of oversubscription, company may allot shares on shares by following way. यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी इस तरह से शेयर्स को क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है. सो द ऑप्शंस आर नंबर 1 फुल्ली सब्सक्रिप्शन या फुल्ली अलॉटेड, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं फुल अलॉटमेंट, सेकेंड पार्शियल अलॉटमेंट. पार्शियल अलॉटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, एंड नंबर थर्ड निल अलॉटमेंट या फिर जीरो अलॉटमेंट. So all these theories points please note down in your copy. In case of the oversubscription, you can see that company cannot allot share more than the offered share. Board of director will have to allot shares on pro rata basis, and in case of the oversubscription, company may allot share by following ways. Number 1 full allotment, number 2 nil or zero allotment, number 3 partial allotment. Let's we discuss all these three ways with the help of example. The example are, suppose कोई एक कंपनी है जिसने शेयर इशू किया, कितने शेयर इशू किए, सपोज कंपनी ने शेयर इशू किए 20,000 शेयर्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अपने कॉपीज में अपने बुक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किया
15,000 शेयर, बट एप्लीकेशन रिसीव हुए या अप्लाइड हुए शेयर्स दैट इज एन 18,000 शेयर। 18 क्या, मान लीजिए कंपनी के 20,000 शेयर अप्लाई हुए, सो कंपनी 15,000 शेयर से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब या अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी सिर्फ कितने शेयर अलॉट कर सकती है? 15,000। यानी इस 20,000 शेयर होल्डर को कंपनी क्या करेगी? 15,000 शेयर दे सकती है। उसके कई डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए, बी एंड सी कैसे बन सकती है? इस मिक्सचर के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अप्लाइड एंड अलॉटेड के बेसिस। कंपनी को टोटल अप्लाइड कितने शेयर हुए? 20,000, लेकिन कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकती है? 15,000 शेयर। यानी कंपनी 15,000 शेयर से ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती सारे 20,000 अप्लाइड शेयर्स को। तो उसके पास पहला ऑप्शन हो सकता है कि जितने शेयर होल्डर ने 8,000 शेयर अप्लाई किया है उसे पूरा का पूरा 8,000 शेयर अलॉट कर दे। सो द कैटेगरी वन विल बी नोन एज फुल अलॉटमेंट। यानी जो शेयर होल्डर ने जितना शेयर मांगा उसे हमने पूरा का पूरा शेयर दिया। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि जिस शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर मांगा उसे हमने पूरा का पूरा 10,000 शेयर दे दिया। कैटेगरी बी कि जितने शेयर होल्डर ने 8,000 शेयर डिमांड किया उसको हमने सिर्फ 5,000 शेयर अलॉट किया। इसे हम बोलेंगे प्रो राटा या पार्शियल अलॉट। एंड नंबर 3 कैटेगरी सी की सिचुएशन में रिमेनिंग 2,000 शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर अप्लाई किया उनको हम लोगों ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, उन्हें बोलेंगे निल या फिर जीरो। सो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन हम क्या कर सकते हैं? कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन द इशूड शेयर। यानी इस सिचुएशन में यू कैन सी दैट कंपनी ने इशू किया है 15,000 शेयर बट एप्लीकेशन आ गए कितने के लिए? 20,000 शेयर के लिए। तो कंपनी ने कैटेगरीज बना ली। एक शेयर होल्डर जिसने 10,000 शेयर अप्लाई किया था तो कंपनी ने उसको पूरा 10,000 शेयर दे दिया, उसे हम लोग बोलेंगे फुल अलॉटमेंट। और रही बात जितने 8,000 शेयर मांगा था, 8,000 शेयर मांगा था, 8,000 उसे कंपनी ने 5,000 शेयर ही केवल दिया, उसे हम लोग बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। एंड निल अलॉटमेंट मतलब कि जिस शेयर होल्डर को कंपनी कोई शेयर नहीं देती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निल अलॉटमेंट। सो अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऑल दीज कैटेगरीज विल अफेक्ट द बुक्स ऑफ द कंपनी। यस, सो इसको ध्यान से समझिएगा। इन केस ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज यू कैन सी दैट फुल अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें तो फुल अलॉटमेंट में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जितना शेयर डिमांड किया कंपनी ने उसको उतना शेयर प्रोवाइड किया। बट इन केस ऑफ द प्रो राटा अलॉटमेंट, सो पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब डिमांड कितने शेयर के लिए आई? 8,000 शेयर के लिए, बट हमने कितना शेयर प्रोवाइड किया टू द शेयर होल्डर? ओनली 5,000। सो जो एक्सेस 3,000 शेयर है, जो एक्सेस 3,000 शेयर है, इस शेयर पे जो भी मनी रिसीव हुई होगी, यानी कि इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो कंपनी के पास आई होगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी या तो हम एडजस्ट कर देंगे विद अलॉटमेंट के साथ या फिर नंबर सेकेंड रिटर्न कर देंगे। So in case of pro rata allotment, you can see that shareholder demand for the 8,000 share, but we provide only 5,000 share. So in this situation, the excess application money, क्योंकि application money हमें मिली होगी 8,000 शेयर पे, but actual application money कितने शेयर पे वैलिड होगी? 5,000 शेयर पे। So जो excess शेयर होल्ड एप्लीकेशन मनी है, या तो उसको हम अलॉटमेंट या फिर कॉल्स पे, क्योंकि शेयर होल्डर ने अभी सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है या तो उसको अलॉटमेंट या कॉल्स पर एडजस्ट कर देंगे या फिर उस पैसे को रिटर्न कर देंगे।
जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और जो कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी मींस इन केस ऑफ निल अलॉटमेंट, इन केस ऑफ निल अलॉटमेंट हम क्या करेंगे, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको हमें रिटर्न करना है। एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं, रिटर्न, क्योंकि यहां एक्सेस कितना बनेगा, 2000 शेयर। So I hope it is clear for you. Please note down in your mind as well as in your copy. In case of full allotment, no need to adjust any amount. But in case of pro rata allotment, excess application money, either we adjust it with the allotment or calls, or either we return this money to the shareholder. And number second is very important. In case of nil allotment, अगर nil allotment, अगर हमने शेयर होल्डर्स को शेयर दिया ही नहीं, उसने डिमांड किया 2000 शेयर का, लेकिन हमने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया, तो सिचुएशन में जो 2000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिली होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये रफली समझने का एक तरीका है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, क्योंकि अप्लाइड शेयर एक्सेस है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो वो किससे होगा, 20,000 से होगा। अब मान लीजिए एप्लीकेशन मनी 1 रुपए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पहला इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, सो द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मान लीजिए एप्लीकेशन मनी कितने से है, 1 रुपीज से, सो टोटल अप्लाइड शेयर इज 20,000 और एप्लीकेशन मनी कितने से, 1 से, सो अमाउंट रिसीव इज ₹20,000। समझने के लिए आप एंट्री सब लीजिए, मतलब अमाउंट को आप एज्यूम कर लीजिए कि सपोज एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹1। सेकंड, हम एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां जब हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, सो यहां पर ये समझने की बात है, एप्लीकेशन में मिला है 20,000, बट एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी है, 15,000 ही तो है, क्योंकि एक्चुअल शेयर इज 15,000 और एक शेयर कितने का है, 1 रुपीज। कंपनी 15,000 से ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती, इसलिए 15,000 से ज्यादा का शेयर कैपिटल भी क्रिएट नहीं कर सकती। सो रही बात जो ये 3,000 है एक्सेस, अगर 1 रुपीज अमाउंट मान लिया एप्लीकेशन का, तो 3,000 एक्सेस हुआ है ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट पे एंड 1,000 एक्सेस हुआ है निल अलॉटमेंट पे। सो जो निल अलॉटमेंट का पैसा है उसे कंपनी रिटर्न कर देगी इमीडिएटली 2,000। और ये जो 3,000 एक्सेस मिला है, इसमें कंपनी पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1 कि वो उसको एडजस्ट कर दे अलॉटमेंट अकाउंट्स पे, और ऑप्शन 2 कि वो उसको रिटर्न कर दे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लॉज गिवन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, इफ देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन कि हमें प्रो राटा अलॉटमेंट को कैसे डील करना है, अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें प्रो राटा अलॉटमेंट को कैसे डील करना है, सो इन दिस सिचुएशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। ठीक है, यानी आप हमेशा याद रखिएगा, इफ देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन related to the pro rata allotment, in this situation excess application money received on pro rata allotment will be adjusted with allotment। कुछ चीजें लिखाई नहीं जा सकती हैं, कुछ चीजें आप अपने माइंड में कॉपी कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि एप्लीकेशन रिसीव होगा तो टोटल सब्सक्राइब शेयर से होगा, टोटल अप्लाइड शेयर से होगा। पॉइंट नंबर 2, जब हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम एक्चुअल एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, निल अलॉटमेंट के एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे बैंक में, और जो पैसा प्रो राटा अलॉटमेंट पे एक्सेस हुआ है, प्रो राटा अलॉटमेंट की सिचुएशन में जो पैसा एक्सेस है, उस पैसे को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पैसा कॉस्ट तक भी एडजस्ट हो सकता है। सो फाइनली वी सी दैट एंड वी conclude this topic
कि ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंपनी को जितना शेयर डिमांड होता है, उस जितना शेयर इशू होता है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आते हैं। इस सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, इशू शेयर से ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, तीन कैटेगरीज बांटी गई हैं, 3 क्राइटेरिया है या 3 वे है जिससे ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। फुल सब्सक्रिप्शन, फुल अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट एंड निल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट मतलब जितना शेयर डिमांड किया उतना शेयर प्रोवाइड किया गया। प्रोराटा मतलब जितना शेयर डिमांड किया उससे कम शेयर अलॉट किया गया, मतलब कुछ ना कुछ अलॉट किया गया। एंड निल अलॉटमेंट का मतलब होता है कि एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक्सेस पैसे को हम अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट पर एडजस्ट कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली मेंशन है कि if there is no information about the treatment of the excess application money received on the pro rata allotment, this money will be adjusted with allotment only. सिर्फ allotment तक वो पैसा adjust होगा। And in case of nil allotment, क्योंकि हमने शेयर होल्डर ने 2000 शेयर डिमांड किया, हमने उसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इसका मतलब वो मेरा शेयर होल्डर बना ही नहीं, तो उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिटर्न कर देंगे। And the journal entry will be bank account debit share application will receive with the total applied money, ठीक है, चाहे वो शेयर्स की इशू से ज्यादा ही क्यों ना हो, बट जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द शेयर एप्लीकेशन, सो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल। निल अलॉटमेंट के एक्सेस एप्लीकेशन मनी को टू बैंक, और प्रोराटा अलॉटमेंट की एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स पर एडजस्ट है 2 शेयर, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, व्हाटएवर। So please note down all these things in your copy properly. In the next video, we will come with the practical questions, the question number 20, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि how we will solve the practical questions related to the oversubscription. So I hope today we clear all the things very easily. आज के लिए इतना ही, thank you.